I'm Pooja on behalf of JK Shah Classes, and first of all, congratulations to you. Thank you so much. Can you look into the camera and introduce yourself? Hi, I'm Ishan Agarwal. I scored 338 marks in the recent CA Foundation exams conducted in September 2024, and I was a student at JK Shah Classes. So Ishan, 338 marks, and of course it's a mean feat. I mean, it's very difficult to get a score like this and completely praiseworthy. तो सबसे पहले तो ये बताओ, जब ये रिजल्ट के बारे में पता चला, इतने अच्छे मार्क्स आए, तो घर पे क्या माहौल था और क्या फील किया? So ma'am, सुबह when I woke up, I knew the result was coming that day. And the entire morning I think I was on my laptop. पूरे टाइम बार reload ही चल रहा था. And जब finally result आया, my parents and my brother, they were all there. And सबसे पहले result आते ही तो it was, I'm not sure if I should say a sigh of relief, but there was a weight off my shoulders then, and at first I was also disappointed कि 350 नहीं आया, 338 पे रह गया, and and then I called my mentor Sujit sir, who's also a teacher at JK Shah, and he congratulated me. And कितने congratulatory calls आए? सबके relatives के आए और जिन relatives से आज तक बात नहीं हुई थी उनके भी calls आए. Of course, but most important चीज इसमें नोट करने वाली ये थी that even someone who scored 338 marks, उनको भी दिल मचलता है कि आज क्या रिजल्ट आएगा. इतना अच्छा पेपर लिखने के बावजूद ये देखना कि रिजल्ट क्या है, and then feeling a sigh of relief. I think it's a very relatable emotion for every student कि पेपर कितना भी अच्छा गया और कितना भी बुरा गया, रिजल्ट के दिन सबको दिल मचलता ही है. उनको ये देखना ही होता है कि हमको क्या रिजल्ट आया, कितने मार्क्स आए, पास हुए, फेल हुए, एंड इवन समवन हु स्कोर्स सच ग्रेट मार्क्स, उनको भी ये होता है. सो स्टूडेंट्स, इफ you ever feel those jittery nerves, please know that every student, whether उनका पेपर अच्छा गया हो या बुरा गया हो, वो कितने भी अच्छे हो, पढ़ाई में कितने भी बुरे हो, सबको सेम फीलिंग आती है. Yes or no? Yes. So Ishan, you mentioned that of course you studied at JK Shah for CA Foundation. तो थोड़ा सा आप ये भी बता दो आपका एक्सपीरियंस क्या रहा यहाँ. Why did you choose JKSC for Foundation, and what has been your experience आपके पूरे इस कोर्स में? Yes ma'am. So of course I joined JK Shah Classes because मेरा बड़ा नाम है and a lot of my friends were also joining, and once I got to know about their entire program, then I knew there was an insanely high passing percentage, even more than ICL, so I knew I had to join it. And the entire onboarding experience was great, and all of the classes, all of the teachers, it was a completely hands-on experience by all of the teachers, and all of the books that JK Shah provided to us, they were completely trustworthy, and I don't think just the ICI modules and especially those past year paper books that we got from JK Shah, those were absolutely amazing for the entire preparation. And I think if you do those books and if you complete all of those past paper questions, then there's no value. Practically nothing much Yeah. left. So for the benefit of everyone, मैं सिर्फ थोड़ा एक्सप्लेन करती हूँ कि जो CA फाउंडेशन के बच्चे थे उनको ऑफ कोर्स JK Shah क्लासेस के नोट्स तो ऑफ कोर्स जाते ही है, जो हमारे टेक्स्ट बुक्स होते हैं विच आर स्पेशली क्यूरेटेड, ताकि वो बुक्स को एग्जॉस्टिव हम बना सके. उसके अलावा बच्चों के एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए हमने पास्ट ईयर के क्वेश्चंस का एक पूरा कंपाइलर सेट स्टूडेंट्स को दिया था फॉर देयर एक्स्ट्रा प्रैक्टिस, जब बैचेस खत्म हो जाए एंड दे हैव दैट सेल्फ स्टडी पीरियड to study for their main exams. So he is referring to those compiler books when he mentioned about the past year questions. So can I say you refer to these three materials? एक तो अपने जो text books थे वो, plus ICI के modules, and then the past year questions का पूरा set, and that was more than enough मतलब exam. Yes. And ये तीनों books cover भी हो सके, मतलब उतना टाइम मिल गया. Yeah, because all of the JK Shah books, those are definitely covered in the classes. Correct. All of the questions are done in class. The module questions are something that you have to actually go home and do it yourself. And Correct. of course, if you have any doubts, you can always ask the The teachers. teachers. And those past year books, that is something that if you want to go the extra mile and you actually want to, I wouldn't say confirm succeeding, but definitely ups the chances. It did for me. And it gave me a lot of confidence doing those questions, looking at the fact that these have already come in the past exams. और अगर वो कर लिया तो फिर एक boost आता है
अच्छी प्रिपरेशन हो जाती है and then not a lot to worry about in the exam. Then your main exam is just like any other question that you're attempting. I think that's fair also. And I also think, sorry for interrupting, I also think कि अगर वो पेपर if you treat it as an actual test paper तो फिर वो एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है to release the nervousness ज़्यादा होता है. Correct. So I think what Ishan is trying to say is what we generally cover in our seminars also कि बच्चे जब एग्जाम लिखते हैं तो उनको एक प्रॉब्लम ये होती है कि क्वेश्चन हमारे सामने आया तो हाउ क्विकली डू यू रिस्पॉन्ड टू दैट क्वेश्चन एंड हाउ एक्यूरेटली यू आर एबल टू फाइंड एन आंसर अ सॉल्यूशन टू दैट क्वेश्चन. ये सबसे बड़ा चैलेंज होता है बच्चों को बिकॉज वो पहली बार वो क्वेश्चन को देखते तो उसको रिएक्ट कैसे करना है उसमें थोड़ा वक्त लग जाता है. कभी जिटरी भी फील होता है अगर हमको इतना क्लैरिटी नहीं है उसके सोल्यूशन की. तो व्हाट ईशान इज ट्राइंग टू से आप जितना ये न्यू क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करोगे जो ऑल्दो आपने कहीं ना कहीं देखा होगा पर मे बी उसके फिगर्स चेंज हो गए कहीं उसके नाम चेंज हो गए तो आपके लिए वो क्वेश्चन एज गुड एज न्यू हो जाता है. तो आपने जितना भी पास्ट ईयर क्वेश्चंस को प्रैक्टिस किया होगा उतना ही जब आप मेन एग्जाम में जाओगे तो देयर क्वेश्चंस विल लुक लाइक एनी अदर प्रैक्टिस क्वेश्चंस दैट यू डू एट होम व्हेन यू आर प्रैक्टिसिंग फ्रॉम दीस बुक्स. एम आई करेक्ट? Perfect. And one more thing I would like to ask you. So generally हमने ये भी देखा है कि बच्चों के पेपर्स कंप्लीट नहीं होते हैं तो हम तो ऑफ कोर्स बच्चों को बोलते हैं कि आप टेस्ट लिखो आपको राइटिंग प्रैक्टिस मिलेगी आप उसमें लिखोगे तो यू विल अंडरस्टैंड कि टाइम से कंप्लीट हो रहा है कि नहीं पेपर. तो आपका ऐसा कुछ एक्सपीरियंस या कोई टिप्स जो आप बच्चे को दे सकते हैं? Yeah, definitely. So I think it's all muscle memory. एक टाइम के बाद कि इतने टेस्ट दो और इतनी बार सेम फॉर्मेट में जैसे अकाउंट्स में हर बार वही अकाउंट्स बना लो तो इतनी बार बना दो कि यू डोंट हैव टू थिंक व्हेन द क्वेश्चन कम्स इन फ्रंट ऑफ यू. यू रीड द फर्स्ट लाइन ये पता है क्वेश्चन क्या पूछने वाला है. वैल्यूज वगैरह तो हर क्वेश्चन में अलग होगी. सो मेक दैट मसल मेमोरी जिससे एग्जाम में स्पीड की कभी दिक्कत ना. एंड एज फॉर द अदर पेपर्स एज वेल जितनी राइटिंग प्रैक्टिस करोगे उतना ऑब्वियसली बेनिफिशियल होगा. यू नीड टू नो व्हाट आर योर स्ट्रांग पॉइंट्स व्हाट आर योर वीक पॉइंट्स एंड स्पेशली लॉ में यू नीड टू नो व्हाट चैप्टर यू एक्चुअली नो हाउ टू राइट एंड व्हाट यू डोंट नो हाउ टू राइट. लाइक फॉर मी इंडियन पार्टनरशिप एक्ट मुझे अभी भी नहीं आता. कोई मुझसे क्वेश्चन पूछ लेगा मुझे नहीं आएगा पर एग्जाम में इसलिए मैंने जानबूझ के लास्ट डे पे उसके क्वेश्चन बहुत सारे देखे जिससे मैं एग्जाम में वो लिख पाऊँ क्योंकि मुझे पता ही नहीं तो मैं लिख नहीं पाता. That's I think right. और law के लिए बात किया, I think a lot of students will bless you because law is one subject to some Waterloo subject ऐसा होता है. Of course you are learning it for the first time in your lives. And how did you identify कि यहाँ पे मेरा weakness है या ये मेरा strength है? वो कैसे identify किया? Again I think it's a lot of repetition. कि एक बार क्लासेस में चैप्टर पढ़ते हैं उसके नोट्स भी क्लास में हम लोग लिखते हैं घर पे जाके वो फिर से रेफर करते हैं. जब उसको इतनी बार पढ़ो तो फिर लगता है कि ये चीज़ याद हो गई बट ये चीज़ मैं कितनी बार पढ़ लूँ याद ही नहीं हो रही है. जैसे पार्टनरशिप में तो स्पेशली मैंने मॉड्यूल से भी ट्राई किया जेके शाह की बुक से भी ट्राई किया पास पेपर भी ट्राई कर लिए कितनी ट्राई कर लिए आई कुड नॉट रिमेम्बर द क्वेश्चंस बट दोज थिंग्स दैट इज वीक मतलब वो फील ही हो जाता है तब कि नहीं आ रहा है ये तो फिर वो चीज़ थोड़ा सा रटना आ जाता है उसके अंदर. बाकी चीजें अंडरस्टैंडिंग से आती है. यू हैव टू मेक योर लैंग्वेज सिमिलर टू व्हाट ICAI गिव्स इन द मॉड्यूल बट फॉर दोस थिंग्स दैट यू वांट एबल टू मेमोराइज जस्ट रटो बैक. He's such an honest student right? इतना मुझे नहीं आता इतना रट्टा ही मारा है मैंने. But we appreciate your honesty, Isha. Thank you so much for enlightening the students. And mind you, students, ईशान को इतना ग्रिप उनके हर स्ट्रेंथ और हर वीकनेस पे इसके लिए है और उनको मार्क्स इतने अच्छे. वन ऑफ द रीजंस ये भी है कि ईशान हैज नॉट मिस्ड अ सिंगल टेस्ट आल्सो that we've conducted. So we conduct test series program जहाँ पे हर वीक में स्टूडेंट्स को एक यूनिट टेस्ट लिखना होता है and once the batches get over हम उनका prelim exams लेते हैं. ईशान has been probably one of the only candidates जहाँ पे उन्होंने consistently हर एक टेस्ट लिखा है irrespective of how well he is prepared, irrespective of what is his condition that day, but
unflinchingly he has attempted every single test that we've held, and I think that kind of consistency or that kind of dedication is completely unseen, and I think it's one of your contributors also to being able to appear in your exams so well and scoring these marks. What are your views on that? So I think once you give an individual chapter का test, तो उसमें obviously बहुत ज़्यादा एक तो उस chapter से comfortable हो जाता है, तो फिर जब वो बड़े एग्जाम में भी आता है, मतलब कोई रैंडम क्वेश्चन नंबर पे भी आता है, then you मतलब your mind can automatically track that information कि हाँ मैंने उस टेस्ट में इधर लिखा था, तो फिर वो तभी आता है. If you don't do those tests, तो फिर वो कॉन्फिडेंस नहीं आता फिर से. आई थिंक मेन चीज तो कॉन्फिडेंस ही होती है. यू हैव टू बिल्ड अप दैट कॉन्फिडेंस बाय गिविंग दोस टेस्ट्स. प्रिपरेशन सबको इंडिविजुअली करनी है. अगर बिना प्रेप के टेस्ट भी दोगे तो कुछ मार्क्स नहीं आएंगे, पर वो कॉन्फिडेंस बिल्ड करना बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड आई यूजुअली हैव एन इशू ऑन दैट परफॉर्मेंस डे and a few days before that, that nervousness, that anxiety, but वो tests की वजह से बहुत minimize होता है. I think that's a great input. I mean, anxiety तो हम सभी को होती है, especially जब exams are coming up. Even though you've studied, you always feel like I'm not well prepared. I'm not well prepared enough for the main exam. And this comes in handy कि चलो मैंने इतने टेस्ट्स लिखे हैं, मैंने इतनी पढ़ाई की है, इतने चैप्टर्स का ऑलरेडी टेस्ट लिख लिया है, तो ऐसा तो नहीं है कि मुझे कुछ नहीं आता है. I'm just having some cold feet right now. I think that really helps, of course. Now that we've talked about your journey, your experience and your strategies also, तो बहुत सारे बच्चे हमको ये भी पूछते हैं कि आप जब भी ऐसा कोई वीडियो कर रहे हो तो आप मेनली आप रैंकर से ये भी पूछो कि उन्होंने क्या गलतियां की थी, ताकि अगर आपने कोई गलती की है जिसका आपने भरपाई किया है तो एटलीस्ट वो रिपीट ना करें एंड दे आर वेल अवेयर ऑफ इट इन एडवांस. तो ऐसे कोई मिस्टेक्स मे बी जो आपने कमिट किए हो इन योर जर्नी ऑफ सीए फाउंडेशन जो आप रेकमेंड करोगे कि कोई और स्टूडेंट्स ना करें? एक्चुअली the main mistake that I did was मैंने अपनी preparation पूरी plan करी थी until 10 days before the exam. but जो last 10 days की preparation होती है, मैंने वो नहीं सोचा कि वो सबसे ज़्यादा important होती है, and I left it to the last second. and I think that had a huge payback मेरे exam performance पे, especially मेरे confidence पे, क्योंकि मैंने एक और चीज़ करी कि जो June attempt था, the attempt right before my exam, I purposely didn't give those papers or attempt those papers until 10 days before my exam. कि मुझे लगा कि तब तक पेपर दूंगा तो फिर I'll get into the flow of giving an exam and then I'll give my exam. And that was a huge mistake क्योंकि जब मैंने लॉ का पेपर दिया जून का तो इतना बड़ा कॉन्फिडेंस पे हिट आया and I was with my mom कि मम्मी मैं पास नहीं होऊंगा. And then she had to convince me a lot कि नहीं बेटा प्रिपरेशन हो चुकी है, तुम्हें बस लिखना है. तो वो बहुत बड़ा हिट था. अगर मैं वो पहले से देख लेता, मैंने तो जानबूझ के नहीं दिया, मतलब I was purposely making a mistake for some reason, and if I did that before, it would have been definitely a big boost to my confidence and to my exam performance. तो ये जो आपने गलती आइडेंटिफाई की कि अगर फॉर एग्जांपल पास्ट कोई पेपर आपको करना है या फिर स्ट्रैटेजी बनानी है, तो आप क्या रेकमेंड करोगे बच्चों को क्या करना चाहिए? I think at least 1 or 2 months before the exam, prepare a plan for those last 10 days and especially the last 1.5 days before the exam. I didn't do that. I didn't do that for economics as well, and if you see my marks, there's a huge drop in economics because I thought MCQs है, मुझे तो आता है economics, it's basic understanding. तो मैंने last 1.5 days के अंदर अच्छे से revision नहीं किया. So that also took a hit on my marks and maybe I could have gotten more marks if I did that. So definitely 1 or 2 months before the exam, plan the last part extremely well. I think बहुत सही बात कही है ईशान ने, क्योंकि इवेंचुअली हम कितने भी महीने डाल दें, हमने चाहे 1 महीना पढ़ाई की हो, 3 महीने की हो, 6 महीने की हो, 1 साल पढ़ाई की हो, हमने जितनी भी पढ़ाई की है, इवेंचुअली इट बॉइल्स डाउन टू how well you prepare in those last 1.5 days, and based on that आपने वो 3 घंटे या वो 2 घंटे जो एग्जाम आप लिखने जाओगे
उसमें आपका परफॉर्मेंस कैसा है ना, वही डिसाइडिंग फैक्टर होता है। तो अगर आपने उस 1.5 डेज को यानी कि पूरे सिलेबस को 1.5 डेज में आप कैसे क्रैम करके रिवाइज करोगे, या अगर आपने पहले से कुछ लास्ट डे रिविजन या कुछ ऐसे मार्क करके रखा है कि दिस इज व्हाट आई नीड टू लुक एट जस्ट 1 day before the exam or on the day of the exam, I think that really helps and it helps you strategize also that अगर इतनी बड़ी बुक पढ़ रहे हो तो वो सारी की सारी 1.5 दिन में तो होने नहीं वाली है। तो हाउ आर यू गोइंग टू प्लान दोस 1.5 days दैट एंश्योर कि आपका एग्जॉस्टिव कवरेज हो रहा है येट quickly हो रहा है। That's number 1 and number 2 I can completely relate with you Ishan because a mistake of similar kind I made but I just went a step further, I will tell you that also। तो मेरे इंटर सी एग्जाम्स जब थे उस वक्त मैं अलग ही कॉन्फिडेंस में चल रही थी कि नहीं अभी तो सब पढ़ाई हो गई है, इतना पढ़ लिया है, लेक्चर्स इतने अटेंड किए हैं, सेल्फ स्टडी भी किया है, एग्जाम्स टेस्ट भी लिखे हैं, तो अब तो क्या है। So I saved the best for the last and I kept the entire RTP booklet to be done 1 day before the exam. I think that has been the biggest mistake that I could have ever done as a CA student, and eventually it costed me because this I did in my first attempt of CA Inter, and when I say first attempt I think it's self-explanatory that I did not clear in the first attempt of CA Inter, and that was because I made mistakes like this। ये बहुत सीरियस तरीके के मिस्टेक्स होते हैं बिकॉज इनका जो इम्पैक्ट हमारे कॉन्फिडेंस पे होता है वो कुछ अलग ही होता है। आई विविडली रिमेम्बर, ऑल्दो काफ़ी टाइम हो गया है मुझे CA इंटर दिए हुए, बट मुझे आज भी याद है कि जब मैंने वो RTP के बुक्स ऑन द डे ऑफ द एग्जाम या 1 day बिफोर द एग्जाम मैंने खोल के ये सोचा कि चलो रिवाइज तो सब हो गया है, अभी RTP तो सबका एक कंपाइलेशन है, क्विकली एक एक क्वेश्चन इसका आता है, आई विल फिनिश द एंटायर सिलेबस। बट वो जिस तरीके का कॉन्फिडेंस तोड़ देता है ना, अगर आपको उसमें से एक समरी ना आए, एक क्वेश्चन का भी आंसर ना आए, तो वो जो कॉन्फिडेंस की बैंड बजाता है, आई डोंट थिंक there can be anything lower than that if to lower your confidence। So I think I can completely relate to you, but you did yourself a favor, you did it before the exam, I did it during my exam so it costed me and it rewarded you। But yes, this is one mistake जो हम recommend करेंगे कोई भी students ये ना करें। अगर आपको कोई past papers देखने हैं which we strongly recommend आपको देखने ही चाहिए, तो उसको आपको आपके पढ़ाई के दौरान में लेना होगा, आपके रिविजन में, आपके सेकेंड रिविजन में, बिफोर योर एग्जाम यू हैव टू लुक एट एवरीथिंग एंड 10 days बिफोर द एग्जाम एंड ड्यूरिंग योर एग्जाम्स यू कैन नॉट रेफर टू एनी न्यू मटीरियल। वो चाहे कितना भी इम्पोर्टेंट हो, चाहे जो हो, आपका हर एक इम्पोर्टेंट मटीरियल आपकी पढ़ाई में और आपके रिविजन में हो जाना चाहिए। आपको कोई न्यू मटीरियल ये लास्ट 10 days में या ड्यूरिंग द एग्जाम आपको छूना ही नहीं। Correct? I think that summarizes his journey at CA Foundation, his strategy, his mistakes, his experience, everything. And I think it's been a very helpful session for all the students also, Ishan. Thank you for opening up so much and thank you for giving all the tips to the students. Welcome, and thank you for having this interview. Absolutely. And congratulations once again. Thank you.